Hello learners, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 21 on Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNU. The exam for this paper would be objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those multiple choice questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 21. The average trophic efficiency of transfer of energy from one trophic level to the higher trophic level is called. Okay. See, in one of the previous sessions, we have discussed a term that we have discussed food chain. Okay. So we have also discussed what are the trophic levels. So suppose I'm telling you this again. Suppose there is a food chain and that starts from grasses. So grasses are at first trophic level. From the grasses on the grasses, suppose we have at second level, we do have grasshopper. So grasshopper is feeding on the grasses. Then on third level, suppose we do have mouse. Mouse is feeding on the grasshopper. On next level, we do have snake. Snake is feeding on the mouse. So this is a food chain that start from grasses. Grasses के ऊपर feed कर रहा है grasshopper. Grasshopper के ऊपर feed कर रहा है mouse. Mouse के ऊपर feed कर रहा है snake. So this is a food chain. ठीक है? But इस food chain में जो मैंने आपको steps बताए कि first step पे हमारे पास grasses है. On the second step, we do have grasshopper. On the third step, we do have mouse. Then on fourth step, we have snake. तो ये जो steps बोल रही हूँ, these steps are known as trophic levels. ठीक है? So one term is clear to you. What are trophic levels? So trophic levels are different steps in a food chain. Clear? उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात करी थी, like किसी भी food chain में जो energy है वो flow करती है. So energy flows in a food chain from one trophic level to another trophic level. But how? It follows 10% law, which was given by Lindman. You can see my previous lecture, one of the previous sessions. I guess if we did this food chain in session 18, I believe it was session 18. Okay, you just go through that video lecture. You will find what is the 10% law of energy. अब आई हैड शोन यू अ पिक्चर ओवर देयर. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, विच वॉज गिवन बाय लिंडमैन. इट इज लाइक सपोज ग्रासेस के पास एनर्जी जो है दैट इज सपोज 1000 यूनिट. ठीक है, सो ग्रासेस के पास 1000 यूनिट का 90% रहेगा. 90% will be used by the grasses only for its own development. Only 10% of 1000 will be given to the next trophic level, will be given to the organism that is present on the next trophic level, or will be transferred to the organism which will be feeding the grasses. ठीक है, so second, अगर grasses के पास total energy 1000 यूनिट थी तो ग्रास ओपर के पास कितना ट्रांसफर हुआ? 900. ठीक है, 1000 का सॉरी यस 100, 1000 का 900 will be used by grasses only 10% will be transferred to the next step and 10% वो कितना हो गया आपका 100. So the energy, total energy for the grasshopper is 100 का 10% will be forward to the next step, will be transferred to the next step, and 90% will be used by the grasshopper only. तो 100 आपका जो 100 उसके पास गया था ग्रासहोपर के पास, टोटल एनर्जी दैट वाज 100 यूनिट. 100 का 90%, that means 90 will be used by the grasshopper and only 10 unit will be given to the next step. So this is the 10% law of energy. तो क्वेश्चन ये है, average trophic efficiency of transfer of energy from one trophic level to another or one trophic level to higher level is called. तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को ये कौन सा है, ये क्या रूल है, क्या है ये? सो दिस इज लिंडमैन ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल and it was given by Lindman 10% law or Lindman trophic efficiency rule. Clear? So let's discuss other options also. What are those? Second option, we do have exploitation efficiency. देखो नाम से पता चल रहा है कि एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज को यूज करना. ठीक है, सो दैट इज एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइटेशन एफिशिएंसी की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, मतलब कितना किसी ने फूड खाया. ठीक है,
डिवाइडेड बाय कितना फूड अवेलेबल था, सो दैट इज एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी। ठीक है, सो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, सो दैट इज अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड बाय ऑर्गेनिज्म, कितना उसने फूड खाया, अमाउंट ऑफ द फूड इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ द प्रे प्रोडक्शन, कितना प्रे मतलब जिस पे भी उस ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया, उसने जिस पे भी खाना खाया, किस पे, प्रे पे, है ना, जिस भी प्रे को उसने खाया, ठीक है, उसका टोटल प्रोडक्शन कितना था। सो एक्सप्लॉयटेशन एफिशिएंसी इज कि कितनी एनर्जी एक्सप्लॉयट हुई। वो कहां से पता चलेगा, कितना खाना उसने खाया और कितना खाना अवेलेबल था। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ द फूड इंजेस्टेड divided by amount of the prey production. So this is the exploitation efficiency. C ऑप्शन में है assimilation efficiency. assimilation का मतलब होता है to absorb something. So here like हम लोग organisms की बात कर रहे हैं, तो assimilation efficiency का मतलब है कि सिर्फ assimilation को अगर मैं डिस्कस करूं, so that is the amount of nutrients, minerals or chemicals absorbed by the organism through its food. ठीक है, so that is assimilation. एसिमिलेशन एफिशिएंसी क्या है कि कितना एसिमिलेशन हुआ, द अमाउंट ऑफ एसिमिलेशन, वो भी बता दिया एसिमिलेशन क्या है, कितना न्यूट्रिएंट, केमिकल और मिनरल्स एब्सॉर्ब हुए थ्रू फूड। सो फॉर्मूला ऑफ एसिमिलेशन एफिशिएंसी इज अमाउंट ऑफ द एसिमिलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ फूड इंजेस्टेड, मतलब कितना उसने खाना खाया ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है, उसमें से कितना, उस खाने में से कितना उसने न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करा। सो दैट इज assimilation efficiency. So I'm repeating, the formula of assimilation efficiency is the amount of assimilation divided by the total amount of food ingested. Clear? Then we have D option, gross primary production. देखो हमारे पास एक टर्म है that is primary production, which is a combination of net primary production एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस। अभी के लिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज हार्वेस्ट बाय द ऑटोट्रॉप्स थ्रू द सन। ठीक है, सो ऑटोट्रॉप्स जो है सन से, फ्रॉम सन कितनी एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, सो दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ऑटोट्रॉप्स अब क्या होते हैं, ऑटो जो अपना खुद से, so autotrophs are the organisms, they can be organisms, normally mostly they are the plants which can make their own food in the presence of sunlight. ठीक है, so autotrophs gross primary production का मतलब autotrophs कितनी एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं, so that is gross primary production. Clear? So Lindemann trophic efficiency rule is the transfer of energy from one trophic level to another trophic level. However, exploitation efficiency is the amount of the food ingested divided by the amount of the prey production. Assimilation efficiency is the amount of the assimilation divided by the amount of the food ingested. Gross primary production is the amount of the energy harvested by the autotrophs from the sun. Clear? So answer to this particular question is A. Next question. Which one of the following is correct matching of a plant, its habit, and the forest type which is normally occurs? Okay. So आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें भी जो हैव ऑप्शंस में तीन चीजें मिली हैं, हर ऑप्शन में देयर आर 3 थिंग्स, है ना। फर्स्ट देयर इज अ नेम ऑफ अ प्लांट, सेकंड उसका हैबिट वो क्या है, थर्ड उस वो कौन से फॉरेस्ट टाइप में रहता है। यू हैव टू टेल वेदर इट इज अ करेक्ट मैच फॉर दैट प्लांट और नॉट। ठीक है, तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोसोपिस। Prosopis is a tree, flowering tree, okay, and इसकी we do have many species, like around 40-45 तक हमारे पास इसकी species है। हिंदी में one of the species I am telling you is कीकर। कीकर is very common name। ठीक है, so ये जो Prosopis है इसकी इसका हैबिट क्या है, ये इट कैन withstand drought conditions। तो ये एरिड जो ड्राई एरियाज है, एरिड एरियाज हैं, वहां पे ये सरवाइव करता है और इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है और ये रेजिस्टेंट, इट इज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट कंडीशंस। ठीक है, ये इसकी खासियत है इस प्लांट की, इस ट्री की, प्रोसोपिस की। तो प्रोसोपिस पहला, यस इट इज अ ट्री, तो ट्री तो इसके साथ मैच कर रहा है। स्क्रब क्या होते हैं, सो स्क्रब इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट
जहां पे आपको ऐसे ट्रीज मिलेंगे जिनकी कैनोपी जो क्राउन होता है ट्री का, सो कैनोपी इज वेरी स्मॉल। एंड स्क्रब मेनली ऐसे फॉरेस्ट हैं जो एरिड कंडीशन में होते हैं, जहां पे ऑब्वियस मतलब थोड़ा सा पानी की कमी होती है, मॉइस्चर कम होता है, ठीक है। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं सब कुछ। प्रोसोपिस वो ट्री है, और इट कैन फाइंड वी कैन फाइंड प्रोसोपिस इन स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि स्क्रब मैंने बता दिया कि ऐसे फॉरेस्ट हैं जहां पे ट्रीज की कैनोपी इज वेरी स्मॉल, और वहां पे थोड़ी सी एरिड कंडीशन होती है, पानी कम होता है। सो प्रोसोपिस जो है वो उसके साथ ये चीजें मैच करती है। लेट्स डिस्कस सेकेंड ऑप्शन, सैकरम। इट इज अ ग्रास, ठीक है। सैकरम इट इज फ्रॉम ग्रास फैमिली, सो द ग्रास दैट इज रिटन विद द सैकरम इज फाइन। बट ये फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा, मेनली ये हमें ग्रासलैंड्स पे मिलेगा। ओके, सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन सी ऑप्शन, शोरेया रोबस्टा। ओके, इट इज अ हर्ब, नो, शोरेया रोबस्टा इज अ ट्री। क्लियर? तो इसका जो सेकंड साथ में शोरेया रोबस्टा के साथ लिखे हर्ब, इट इज नॉट अ हर्ब, इट इज अ ट्री। सो ऑब्वियसली अगर ट्री है तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वी विल नॉट डिस्कस कि ये कौन से फॉरेस्ट में ये मिलता है, बट येस हमें हमें सेकंड ही मिल गया कि हर्ब तो ये फॉर श्योर नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट। डी पे चलते हैं, अकेशिया कैटिचू ट्री है ये, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। देखो अकेशिया कैटिचू, हम लोगों ने एक वीडियो में अकेशिया की दूसरी फैमिली, दूसरी स्पीशी को डिस्कस कराए, और हम लोगों ने उस टाइम पे डिस्कस करा था कि अकेशिया जो है इट इज अ डेसिडुअस फॉरेस्ट, इट इज फाउंड इन डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पे ऐसे ट्रीज मिलते हैं विच शेड देयर लीव्स periodically, मतलब जो साल में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं, उनको हम डेसिडुअस बोलते हैं। So Acacia catechu, it is a tree for sure, but we do not find it in coniferous forest. They are more common in deciduous forest. ठीक है? तो second option में first two things were right. Saccharum grass है but forest नहीं है, मतलब वो forest में नहीं मिलता, वो grassland में ज्यादा मिलता है। Shorea robusta वो herb नहीं है। Acacia catechu वो tree तो है but it is more common in deciduous forest. So अगर हम करेक्ट मैच की बात करें, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज प्रोसोपिस इट इज अ ट्री एंड इट इज मोर कॉमन इन स्क्रब फॉरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हम दो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकेंड वन इज द एक्वाटिक इकोसिस्टम। इट मे बी ऑब्जर्व दैट, मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है व्हेन वी कंपेयर the grassland ecosystem with the pond ecosystem. Clear? So first option is primary and secondary consumers are similar. This can't be true because एक आपका terrestrial ecosystem है, other is the aquatic ecosystem. प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर जो है दे कैन नॉट बी सिमिलर। पॉन्ड की अगर हम बात करें, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉन्ड की अगर हम बात करें, द फूड चेन विल स्टार्ट फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द फ्लोटिंग प्लांट्स, फाइटो मीन्स प्लांट्स, प्लैंक्टन मीन्स टू फ्लोट, सो फाइटोप्लैंक्टन आर द टाइनी फ्लोटिंग प्लांट्स। सेकेंड स्टेज जो है दैट इज ऑफ जू प्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर जू प्लैंक्टन मतलब स्मॉल एनिमल्स जो कि फ्लोट करते हैं, दे विल फीड। फिर उसके बाद फिशेज की कैटेगरी या एक्वाटिक एनिमल्स की कैटेगरीज आ जाएंगी, ऐसे फूड चेन चलेगी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। वहीं पे इफ वी टॉक अबाउट ग्रासलैंड्स, तो वही हमारी प्रीवियस जो पुरानी एग्जांपल चल रही है बार बार, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम्स, ग्रासेस, ग्रासहोपर, माउस, स्नेक, ईगल। सो दिस इज अ फूड चेन विच वी कैन फाइंड ऑन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो दोनों फूड चेन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर सिमिलर नहीं हो सकते। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब विच कंज्यूम एट फर्स्ट लेवल, मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करता है, विच कंज्यूम एट फर्स्ट लेवल, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाता है, जो दूसरे कंज्यूमर्स को खाता है। क्लियर? तो ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, एटलीस्ट फॉर two different ecosystem. One is the aquatic and other is the terrestrial. Coming to the second option, the abiotic component are almost similar. See, this is true. How? Abiotic component क्या होते हैं? The non-living component. Non-living component आपके जैसे water, sunlight, soil, minerals, ठीक है, आपके ये मिनरल्स में आपके ये सारे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन,
सो ये सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एंड दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। चाहे तुम पानी में चले जाओ, एक्वाटिक इकोसिस्टम में चले जाओ, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में चले जाओ, द aquatic abiotic component will be almost similar, ठीक है। So B option is correct. Let's discuss C option. The biotic components are almost similar. So biotic मतलब living components. Living components cannot be similar. वही हमने A option में बात करी, because biotic components अगर हम pond की बात करें, living components will be phytoplankton, zooplankton, fishes, large fish, small fish, है ना। और अगर हम grassland की बात करें, the biotic components will be grasses, grasses, और आपके जो एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ, कोई भी आपकी माउस है या स्नेक है, ठीक है। सो दीज आर नॉट सिमिलर। कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, both biotic and abiotic components are different. No, because we have discussed in option B that abiotic components are similar, almost similar, ठीक है। So answer आपका क्या आ गया? B. The abiotic components for grassland ecosystem and for pond ecosystem are almost similar, ठीक है। Fourth question is, the pyramid of energy is always upright for an ecosystem. This situation indicates the fact that, तो इनमें से कौन सा ट्रू है? देखो, पिरामिड मतलब दिस वन, pyramid of energy is always this one, not the inverted. It is always the upright one. Upright one मतलब on the base energy would be high, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो बात हो रही है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यस, इट इज ट्रू, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट फॉर एनी इकोसिस्टम। इस सिचुएशन से हमें क्या पता चलता है, कौन सा फैक्ट जो है वो इंडिकेट करता है? Herbivores have a better energy conversion efficiency than carnivore. This can be true, ठीक है। Let's discuss how. Herbivore आपके कहाँ पे आएंगे? Herbivore आपके होते हैं जो कंज्यूम करते हैं एट प्राइमरी लेवल, जो आपके ग्रासेस को या प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो ग्राउंड पे सबसे पहले हमारे पास फूड चेन में क्या है? ग्रासेस है। ग्रासेस की एनर्जी ज्यादा है, तभी पिरामिड अपराइट होएगा ना, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। जैसे हम सेकेंड स्टेप पे गए, एनर्जी कम होगी, क्योंकि 10% लॉ ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करना है, ठीक है। तो ग्रासेस के पास जितनी एनर्जी थी, हर्बीवोर ने जब उनको कंज्यूम करा, उसकी एनर्जी जो है 10% गई, मतलब कम होगी एनर्जी। हर्बीवोर पे जब कार्निवोर ने उसको फीड करा हर्बीवोर को, एनर्जी और कम होगी। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि हर्बीवोर के पास एनर्जी ज्यादा थी। सो हर्बीवोर हैव अ बेटर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी देन कार्निवोर, क्योंकि कार्निवोर के पास तो और एनर्जी कम होगी, ठीक है। जैसे जैसे फूड चेन में जा रहे हैं 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, रेस्ट ऑफ द 90% विल बी यूज्ड बाय द प्रीवियस बाय द ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। तो हर्बीवोर के पास अगर 100 यूनिट एनर्जी थी ना, तो कार्निवोर के पास तो सिर्फ 10 यूनिट गई। 90% विल बी यूज्ड बाय हर्बीवोर। So herbivore have a better energy conversion efficiency than carnivore. This is true. Second option पढ़ते हैं, producers have lowest energy conversion efficiency. ये तो हो ही नहीं सकता, प्रोड्यूसर के पास तो सबसे ज्यादा एनर्जी है जिसपे हर्बीवोर आपका फीड कर रहा है। सो इट प्रोड्यूसर्स हैव लोएस्ट एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। दिस कांट बी ट्रू, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर एट द बेस ऑफ अ फूड चेन, पिरामिड के वो बेस पे हैं जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। Carnivores have better energy conversion efficiency than herbivore. This also cannot be true, क्योंकि कार्निवोर तो थर्ड स्टेप पे आएंगे, पहले प्रोड्यूसर्स हैं, फिर हर्बीवोर है, फिर कार्निवोर है। कार्निवोर की एनर्जी तो कम है, तो इट कैन नॉट हैव, कार्निवोर कैन नॉट हैव बेटर एनर्जी conversion efficiency than herbivore. Then energy conversion efficiency is same in all the trophic level. If D option is true ना, then 10% law of energy cannot be true, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंसी, कन्वर्जन एफिशिएंसी सारे ट्रॉफिक लेवल के लिए सेम नहीं हो सकती। सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज herbivores have a better energy conversion efficiency than the carnivore. So answer is A. Okay. So last question is, study the following list. You have to study the following list. Okay. List 1 is A, population, B, community, C, ecosystem, D, ecosphere. List 2 is, we have part A in list 2, part of earth consisting of all the ecosystem of the world,
assemblage of all the individuals belonging to different species occurring in an area, group of similar individuals belonging to the same species found in an area, interaction between the living organism and their physical environmental components, or the classification of organisms based on the type of environment. देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन. हमारे पास लिस्ट 1 है, यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. ठीक है, लिस्ट 1 में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड इकोस्फीयर. और लिस्ट 2 में हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं. यू हैव टू मैच कि ए के साथ क्या मैच करेगा फ्रॉम लिस्ट 2, एंड बी के साथ क्या मैच करेगा फ्रॉम लिस्ट 2, सी के साथ क्या मैच करेगा एंड डी के साथ क्या. लेट्स डिस्कस ए, पॉपुलेशन. देखो पॉपुलेशन क्या होती है. अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, सो ह्यूमन की एक पॉपुलेशन, स्पीशीज सेम है ह्यूमन, उसका अगर मैं नंबर काउंट करूं सो दैट इज पॉपुलेशन. अगर सपोज मैं कैट की बात करूं, ठीक है, कैट की स्पीशी एक है, उसके नंबर की बात करूं सो दैट इज अ पॉपुलेशन ऑफ कैट. क्लियर. मैं सपोज अकेशिया ट्री की बात करती हूँ, स्पीशी इज सेम, और उसके नंबर की बात करती हूँ, दैट इज अ पॉपुलेशन ऑफ आपका ट्री. तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है. Population is group of similar individuals, similar individuals belonging to same species found in an area. एक ही स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ग्रुप को, उनके नंबर को व्हाट आई डू कॉल्ड पॉपुलेशन. ठीक है. सो ए के साथ क्या मैच करेगा, 3. देन कमिंग टू द बी, कम्युनिटी. कम्युनिटी की अगर हम बात करूं, इट इज लाइक अगर मैं कहूं कि कम्युनिटी लाइक आई विल से सपोज कैट कम्युनिटी. ठीक है, कैट कम्युनिटी में कैट भी आ गया, लेपर्ड भी आ गया, लाइन भी आ गया, क्योंकि ये सारे कैट कम्युनिटी में है. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं लिजर्ड कम्युनिटी की बात करूं तो इसमें एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये सारे लिजर्ड कम्युनिटी में आ गए. ठीक है. तो कम्युनिटी में क्या है, इट इज असेंबलेज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स belonging to different species occurring in an area. Species different है बट वो मतलब अलग अलग स्पीशीज इकट्ठी कर दो. ठीक है. तो स्पीशीज अलग है लेकिन उन सबको जब मैं उनको काउंट करने लग जाती हूँ, सो कैटेगरी इज 1, स्पीशीज इज अलग, कैटेगरी इज 1. ठीक है. कम्युनिटी, सो कम्युनिटी अब जो है आई वुड से लाइक इट इज अ कैट कम्युनिटी, इट इज फ्रॉम लिजर्ड कम्युनिटी, इट इज फ्रॉम बर्ड कम्युनिटी. ठीक है. तो कम्युनिटी, सो कम्युनिटी के साथ बी ऑप्शन मेरा जो है वो बेस्ट मैच करता है, सेकंड. सो दैट इज assemblage of all the individuals belonging to different species occurring in an area. Ecosystem की बात करें, so it is interaction between living organism with their non-living environment or physical environment. So C के साथ फोर्थ ऑप्शन जो है वो बेस्ट मैच कर रही है. Let's discuss D option, ecosphere. So ecosphere is same as biosphere. So ecosphere means जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज बायोस्फीयर. सो इकोस्फीयर के साथ ए ऑप्शन, वन ऑप्शन विल मैच लाइक पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. बायोस्फीयर में भी हमने ये करा कि इसमें एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आता है. तो इकोसिस्टम में भी यही, इकोस्फीयर में भी सेम है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी इकोसिस्टम है जब उनको मैं इकट्ठा कर देती हूँ, पार्ट ऑफ द अर्थ जहां पे सारे इकोसिस्टम इकट्ठे हैं, सो दैट इज द इकोस्फीयर. सो द करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन इज डी, वेयर ए मैचेस विद 3, बी मैचेस विद बी, सी मैचेस विद 4 and D matches with 1. Clear? So this was the last question of session 21. So learners, those who have taken admission whether in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from that, we are also giving value-added notes. We are helping our mentees for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors is there. Mentors are helping the learners for completing and submitting the assignments, for their career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री. So you can reach us out on the number 7594939297 through call or WhatsApp. You can also visit our official website. Thank you. See you in the next session.